نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ الحمدللہ ہم لوگ یہاں کئی ہفتوں سے سیرت کی نسبت سے جمع ہو رہے ہیں اور آپ بہنیں جتنی بھی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ سیرت کے اس موضوع پر کافی کچھ معلومات آپ لوگ لکھ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں اپنے پاس۔ اللہ رب العالمین ہماری اس معلومات کو ہمیں عام کرنے اور خود اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا سیرت کا کون سا یہ درس ہے؟ 7۔ الحمدللہ اس کے پیچھے دروس کے اندر یعنی پیچھے جو میں نے درس دیے ہمارا مین ٹاپک کیا چل رہا ہے اس کے اندر؟ آپ کی دعوتوں کو روکنے کے لیے جو طریقے کفار نے اپنائے تھے ان طریقے پر اپن بات کر رہے ہیں الحمدللہ جی۔ اس میں آخری پوائنٹ جو میں نے بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا؟ جی بالکل، بات چیت کرنے آئے تھے، لالچ دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ پوائنٹ نمبر کون سا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اب ہمارا آج کا نواں پوائنٹ رہے گا کہ جب انہوں نے آپ کے پاس آئے، آپ سے بات چیت کی کہ بھائی آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کے ذریعے آپ چاہتے کیا ہو، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، ہمیں وہ بتا دیجئے تو ہم آپ کا مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ مال چاہیے مال لے لیجئے، نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم بہترین خاتون سے نکاح کروا دیتے ہیں، عزت چاہیے شرف چاہیے ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرا یہ سب مقصد نہیں ہے، میں دین کے لیے آیا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد دنیا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس سے بھی تھک گئے تو ان لوگوں نے پھر کیا شروع کیے؟ الٹے سیدھے سوال کرنا۔ پوائنٹ نمبر 9 کیا شروع کیا؟ الٹے سیدھے سوال کرنا، یعنی بلا مقصد کے سوال کرنا۔ ان سوالوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صورتوں کی الگ الگ آیتوں کے اندر کیا ہے، اب ان کے حوالے لکھ لیجئے تو یہ الگ الگ چیز وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 111، سورہ انعام آیت نمبر 111، سورہ رعد آیت نمبر 31 رعد را عین دال، اور اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 60، سورہ رعد کی آیت نمبر 31، سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 جی 60۔ اس کے اندر ان لوگوں نے کفار مکہ نے یہ ایسا نہیں کہ انہی آیتوں میں، قرآن میں کئی جگہ ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہار گئے، آپ کی دعوت کو نہ روک پائے، تو نواں طریقہ جو انہوں نے استعمال کیا تھا وہ یہ آپ سے الٹے سیدھے سوال کرنا۔ تو ان سوالوں کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرو، آپ اگر نبی ہو تو پہاڑ کو چلا کر دکھاؤ، اگر آپ نبی ہو تو مکہ وہاں جہاں قبر ریگستان ہے وہاں پر نہر بہا کے دکھاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے عجیب سوال، پہاڑ، کیونکہ مکہ کے اندر پہاڑ بہت زیادہ تھے تو کہا یہ پہاڑ جو کھڑے ہوئے انہیں کیا کر کے دکھاؤ؟ چلا کر دکھاؤ۔ اس مکہ کے ریگستان میں نہر بناؤ اور نہر کو بہا کر دکھاؤ۔ اسی طرح محل بنا کر دکھاؤ، کیا کر کے دکھاؤ؟ محل بناؤ۔ اسی طرح اللہ کا عذاب لا کر بتاؤ، جیسے آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ میں الفاظ ملیں گے اس کے اندر اعتنا بھی، اعتنا کہ ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھاؤ، یعنی جب تم عذاب کی بات کر رہے ہو کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کیا کرو؟ عذاب لا کر دکھاؤ، عذاب لا کر دکھاؤ۔ اسی طرح بولے مردوں سے بات کروا کے دکھاؤ، مردوں سے بات کر کے، کچھ پوائنٹ آپ نے لکھ لیے، پہاڑ کو چلا کر دکھاؤ، نہر بہا کر دکھاؤ، محل بناؤ، اللہ کا عذاب جس کا وعدہ کر رہے ہو عذاب لا کر بتاؤ، اور مردوں سے بات چیت کروا کر دکھاؤ۔ اب یہ سارے ایسے سوال تھے جو بنا سر پیر کے تھے۔ بھئی نبی سے آپ ایسی ڈیمانڈ کرو گے تو ضروری تھوڑی نبی آپ کی ہر بات کو پورا کریں گے، کیونکہ نبی کا کام ہے دعوت دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، جن باتوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب خود ہی ان کے اوپر آنے والا ہے۔ تو اس پوائنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مقصد یعنی سوالوں کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا ہے، آپ کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں گے، فضول کے سوال کریں گے، جس کی ان کو ضرورت نہیں، جس سے سیکھنا مقصد نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سوالات سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ ہوا 9واں پوائنٹ۔ اس کے بعد 10واں پوائنٹ، قتل کا ارادہ۔ جب ہر چیز میں تھک گئے، سمجھا کر تھک گئے، تو کیا بولے اب کیا کریں گے؟ ان کو قتل کر دیں گے۔ قتل کے لیے ایک مثال صرف آپ لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو قتل کا ارادہ کیا تھا ابو جہل نے۔ کس نے ارادہ کیا تھا؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں یہ پتھر اٹھاؤں گا اور لے جا کر جب اللہ کے نبی نماز پڑھیں گے تو ان کے سر پر مار دوں گا۔ کیا کروں گا؟ ان کے سر پر مار دوں گا۔ ایک واقعہ ہے، یہ ابو جہل نے جو ارادہ کیا تھا، یہ واقعہ آپ کو سیرت ابن ہشام کے اندر ملے گا۔ کہاں ملے گا؟
सीरत इब्न हिशाम चूंकि अरबी के अंदर है, हमारे उर्दू के अंदर मौजूद नहीं है, पर यह वाकया वहां पर मौजूद है सीरत इब्न हिशाम के अंदर पहली जिल्द के अंदर कि अबू जहल ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया तो क्या करता है, जैसे ही आप नमाज पढ़ने लगे वो एक बड़ा हेवी पत्थर लेकर आपके पास में जाता है। जैसे ही पास में जाता है एकदम दूर पीछे डर के मारे हट जाता है और पत्थर फेंक के वापस उन लोगों के पास आकर बैठ जाता है जिनके साथ वो बैठा हुआ था। वो लोग सवाल करते हैं कि तुम मारने के लिए गए थे, पत्थर मारने के लिए गए थे, डर कर वापस क्यों आ गए? कहा मैंने आपके पास एक बहुत बड़ी ऊंटनी को देखा और ऐसा लगा कि मैं अगर आपके पास में जाऊंगा तो मुझे चबा कर खा लेगी। क्या करेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सीरत इब्न हिशाम के अंदर तबकात इब्न साद के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात ये पता चली तो आपने कहा कि वो जिब्रील थे। कौन थे? अगर वो मेरे करीब आता तो उसे खत्म कर देते। क्या कर देते? खत्म कर देते। नहीं, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी की हिफाजत करने पर आ जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक मोमिन को इस बात पर यकीन रखना चाहिए। ये 10वां पॉइंट हुआ, ठीक है। 11वां पॉइंट, यहूदियों से मुलाकात। अब कुफ्फार मक्का जब अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके तो किसके पास गए बात करने के लिए? यहूदियों के पास। और यहूदी जो मुसलमानों के खुले हुए दुश्मन है, ये यहूदियों के पास जाते हैं मिलने के लिए और यहूदियों से कहते हैं कि हमारे पास एक नबी आए हैं, वो नबूवत का दावा करते हैं, नबूवत की बातें बताते हैं, तो आप हमारी उसमें हेल्प कीजिए, हम उसको कैसे नीचे गिराएं, हेल्प कीजिए कैसे उसकी बातों को गलत साबित करें। तो यहूदियों ने आपको 3 सवाल दिए थे। कुफ्फार मक्का को कितने सवाल दिए थे? 3 सवाल। ये 3 सवाल उनसे पूछना, अगर जवाब दे दें तो वो सच्चे रसूल हैं और अगर जवाब ना दे पाए तो जान लेना वो झूठे हैं। क्या हैं? झूठे हैं। तो वो 3 मशहूर सवाल जो यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, वो 3 सवाल कौन से? सबसे पहला सवाल असहाबुल कहफ के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? असहाबुल कहफ के बारे में बताइए। दूसरा सवाल जिलकरनैन के बारे में बताइए। किसके बारे में? जिलकरनैन। तीसरा सवाल रूह के बारे में बताइए। जो हमारे जिस्म के अंदर रूह होती है ना, रूह के बारे में बताइए। समझ गए 3 सवाल? तो यहूदियों ने ये 3 जो सवाल किए थे, आप समझ रहे हैं कितने मुश्किल सवाल हैं ये। भाई असहाबुल कहफ जब आप उनके दौर में थे ही नहीं तो आप कैसे बताओगे उनके बारे में? जिलकरनैन के जमाने में जब आप थे ही नहीं तो कैसे बताओगे उनके बारे में? और उनकी पेशिंगोई कहां पर मौजूद थी? यहूद और नसारा की किताब में मौजूद थी पहले से। तो ये बातें आप कहां से बताते? अगर आप सच्चे होंगे तो आप पर क्या नाजिल होगी? वही नाजिल होगी। और अगर सच्चे ना होंगे तो क्या पता चल जाएगा क्या झूठ बोल रहे हैं। अब इन यहूदियों से लाकर कुफ्फार मक्का ने जब ये 3 सवाल किए, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक पूरी सूरत नाजिल की जिसमें इन तीनों का जवाब है। उस सूरत का नाम सूरतुल कहफ। पढ़ते हैं जुमा के दिन? किसी ने तर्जुमे से पढ़ा उस सूरत को? कभी तर्जुमे से पढ़ा होगा तो उसमें वाकया पढ़ा है असहाबुल कहफ का, नौजवानों का, जिलकरनैन का वाकया पढ़ा है। और उसी में इन तमाम चीजों का, इन तमाम सवालात का जवाब अल्लाह ताला ने उसी सूरह कहफ के अंदर नाजिल किया। जब इन जवाबात को आपने दिया तो यहूदियों ने कहा वो सच्चे रसूल हैं। क्या हैं? वो सच्चे रसूल हैं। तुम उनकी बातों को मान सकते हो, वो सच्चे रसूल है। पर यहूदियों ने आपकी बातों को माना था। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर कई मकामात पर कहता है कि यहूदी जानते थे कि आप सच्चे हो, अल्लाह के नबी हो, और यहाँ तक कि वो आपका इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाले हैं, पर उनको ये था कि वो हमारी नस्ल में से आएंगे, कुरैश से आ गए, इसलिए उन्होंने क्या किया? आपका इनकार कर दिया। तो ये 11वां पॉइंट है। क्लियर है? पिछले सारे पॉइंट आपके जहन में है ना? मैं आपको पॉइंट और दूसरी चीज मैं आपको बार बार एक चीज नोटिस करवा रहा हूँ सीरत के अंदर। वो क्या चीज है? इन पॉइंट्स के साथ मैंने एक अहम चीज बताई कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ किस चीज के जरिए कर रहा हूँ? आपकी उम्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र के जरिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बीच पॉइंट में कुछ बातें हजरत इस्लाम, हमजा का इस्लाम, उमर का इस्लाम, ये सब भी जिक्र किया, क्योंकि मैं सारी सीरत आपको उमर के जरिए बता रहा हूँ, ताकि आप भी कभी किसी को सुनाए तो उमर के जरिए पूरी सीरत इंशाअल्लाह सुना सकेंगे। तो ये सवालात जो चल रहे थे, ये आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इस वक्त आपकी उम्र हो गई थी 47 साल। कितने साल? 47 ईयर्स के आप हो चुके थे। 47 साल यानी नबूवत का ये कौन सा साल हुआ? 7वां। माशाअल्लाह। कौन सा साल हुआ नबूवत का? 7वां साल। ये 47 साल की जब आपकी उम्र हुई, ये सारे सवाल किए गए, तो आखिरी में इन्होंने एक 12वां बड़ा सख्त पॉइंट इस्तेमाल किया था। वो था समाज से बायकाट करना। क्या करना? ये कौन सा पॉइंट है? 12वां पॉइंट। जब अब ये क्या हुआ कुफ्फारे मक्का के साथ कि इधर ये लोग परेशान, आपके जवाबात जो मांगे वो मिल जाएं, आप जो बात करें वो सच्ची साबित हो जाए, आपको झूठा साबित नहीं कर पा रहे थे, आपको मार नहीं पा रहे थे, आपको रोक नहीं पा रहे थे। और इधर क्या हुआ? इनके दो बड़े बड़े लोग कम हो गए थे। कौन कौन कम हो गए थे? हमजा और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों कुफ्फारे मक्का के बहुत बड़े लोगों में से थे। दोनों मुसलमान हो गए तो ये लोग बिल्कुल बौखला गए थे। क्या हो गया था? बिल्कुल बौखला गए। इन्हें कुछ समझ में नहीं पड़ रहा था, क्या करें, कत्ल का इरादा करें, कैसे मारें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आखिर में क्या करते हैं ये लोग? आपके दोबारा कत्ल करने का इरादा करते हैं। किस चीज का इरादा करते हैं?
قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, پر یہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, یہ خبر لگ جاتی ہے ابو طالب کو. کس کو؟ ابو طالب کو. تو ابو طالب ان تمام لوگوں کو لے کر شعب ابی طالب, جگہ کا نام کیا ہے؟ شعب, شین عین بے, شعب ابی طالب یا شعب ابو طالب. ابو طالب کی گفا بولتے ہیں اس کو, اس گفا کا نام ہی ابو طالب کی گفا ہو گیا. آپ کیا کرتے ہیں, بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب, یہ دو قبیلے تھے جو عرب کے, بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب, ان دو قبیلوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ لے کر آپ اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پر رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. اچھا, اس میں ایسا نہیں صرف مسلمان تھے, اس میں بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے کفار بھی تھے. کون تھے؟ کیونکہ ان سب کے خلاف کفار مکہ کھڑے تھے, اس لیے دونوں کے دونوں قبیلے پورے کے پورے ایک طرف ہو جاتے ہیں, اس شہر کے اندر چلے جاتے ہیں. ان کے تعلق سے کفار مکہ ایک میٹنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک میٹنگ کرتے ہیں کفار مکہ. کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ سب جمع ہوتے ہیں اور ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ اپن ایسا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو قتل نہیں کرنے دے رہے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہیں, تو اپن ایسا کرو, ان دونوں قبیلوں کا بائیکاٹ کر دو. کیا کرو؟ بائیکاٹ. جانتے ہیں کتنا کیسا بائیکاٹ تھا اور وہ کیا درجے کا ظلم تھا اور کس درجے پر وہ بائیکاٹ کیا گیا تھا. اور اس بائیکاٹ کو جو لکھنے والا تھا, یعنی جسے معاہدہ کہا جاتا ہے, اس کو لکھنے والے کا نام لکھ لیجئے, بغیض بن عامر. کیا نام تھا اس کا؟ با غین یا ضاد, بغیض بن عامر, عین الف میم را, عامر. بغیض بن عامر نام کا یہ شخص تھا, یہ کفار مکہ میں سے تھا, جس نے ایک معاہدہ لکھا کہ اب یہ لوگ مان نہیں رہے نا, اللہ کے نبی کو ہمارے سپرد نہیں کر رہے ہیں نا, ان کو لے کر چلے گئے نا, ایسا کرو اپن ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدہ کو کعبہ کے اندر لٹکا دیں گے تاکہ سب کو اس بات کو ماننا پڑے گا. تو بغیض بن عامر نے سب کے مشورے سے ایک معاہدہ لکھا کہ اب آج سے بنو مطلب اور بنو ہاشم سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. پہلا پوائنٹ, کیا نہیں کریں گے؟ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کا جب بائیکاٹ کیا گیا ہے تو بائیکاٹ کا جو معاہدہ بنایا گیا تھا اس میں کیا کیا شرطیں رکھی گئی تھی, تو شرطوں کو آپ لکھ لیجئے. معاہدے کی شرطیں, پوائنٹ کیا لکھیں گے؟ معاہدے کی شرطیں. پہلا پوائنٹ تھا اس قبیلے سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. دوسرا پوائنٹ, کوئی بات چیت نہیں کرے گا. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ دو قبیلوں کا بائیکاٹ ہے, اور بائیکاٹ جن سے کیا گیا پورے کفار مکہ نے معاہدہ کیا, تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ کیا کہ کوئی ان سے نکاح, دوسرا پوائنٹ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا, تیسرا پوائنٹ ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ تجارت نہیں کرے گا. چوتھا پوائنٹ, ان سے کوئی ملے گا بھی نہیں اور بیٹھے گا بھی نہیں ان کے ساتھ, یعنی غار کے اندر نہ کوئی ملنے جائے گا نہ کوئی بیٹھنے جائے گا. دیکھا چوتھا پوائنٹ, نہ ملنے جائے گا اور نہ بیٹھنے جائے گا, یعنی ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. تو اب آپ دیکھیے, اور اس کے اندر ایک آخری پوائنٹ آپ یہ لکھ لیجئے, 5ویں نمبر کا پوائنٹ. 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ساری شرطیں تب تک چلے گی جب تک کہ اللہ کے نبی کو ہمارے سپرد نہ کر دیں. کب تک چلے گی یہ شرطیں؟ جب تک کہ اللہ کے نبی کو ہمارے سپرد نہ کر دیں. تو مقاطعہ عامہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے بائیکاٹ. عمر اور حمزہ کے اسلام کے بعد کفار مکہ کے اندر بوکھلاہٹ ہوئی, انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا. تو جب ارادہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب آپ کی حفاظت کے لیے غار کے اندر چلے گئے, جس غار کا نام ہے شعب ابی طالب. اس کے اندر چلے گئے. تو اب یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اب ایسا کرو, جب یہ اپنی بات نہیں سن رہے تو اپن ان کے خلاف ایک معاہدہ کریں گے. اور معاہدے کے لکھنے والا کون تھا؟ بغیض بن عامر. اور اس نے سب کے مشورے سے پہلا پوائنٹ لکھا کہ ان سے کوئی نکاح, ان سے کوئی بات چیت, پھر اس سے تجارت, ملنا جلنا بیٹھنا, اور آخری میں کب تک یہ سب چلے گا؟ جب تک کہ اللہ کے نبی کو ہمارے سپرد نہ کر دے, یعنی خود سے لا کر دے دے کہ جاؤ ان کو قتل کر دو, تب تک یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا. ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں صرف ایک آدمی تھا جو شعب ابی طالب میں نہیں گیا تھا. کون تھا وہ؟ ابو لہب. کون تھا؟ ابو لہب. یہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا. تو اس نے, جبکہ یہ بنو مطلب کا خاندان کا تھا, اسی خاندان سے تھا, پر جب معاہدے کی بات آئی تو یہ ان کو چھوڑ کر کدھر چلے گیا تھا؟ کس کی سائڈ چلا گیا تھا؟ کفار مکہ کی سائڈ. تو ابو لہب اس معاہدے کے اندر شامل نہیں ہوا. ابو لہب بلکہ اپوزٹ پارٹی کفار مکہ سے جا کر مل گیا, کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا دشمن تھا. اور یہ بائیکاٹ کتنے سال چلا؟ 3 سال. کتنے سال؟ یعنی آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی غار کے اس بائیکاٹ میں؟ 50 سال. کتنی عمر ہو جائے گی؟
50 साल, 3 साल तकरीबन, कमो बेश कुछ लोगों ने 2.5 साल लिखा है, कुछ ने 3.25 साल लिखा है, यानी तकरीबन 3 साल का ये वक्फा बायकाट के जरिए गुजरा। इस बायकाट के अंदर निकाह बंद, तिजारत बंद, बातचीत बंद, कारोबार बंद। सोचिए क्या हालात हुए होंगे मुसलमानों के। अपने ही शहर में बायकाट कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, बातचीत बंद, ताल्लुकात बंद, और उसके अंदर शिद्दत आप जानते हैं क्या होती थी कि आप जानते हैं मक्का में कुछ पैदा नहीं होता है, कोई खेती नहीं होती मक्का में। कहां से आता है? सब बाहर से आता है। और यहाँ का कुछ अगर सामान होता है, खजूर वगैरह, वो वहां जाती थी। तो जब कोई तिजारत की गरज से काफिला आता और ये बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम के लोग खरीदने जाते तो कुफ्फारे मक्का उसका रेट बढ़ा दिया करते थे। क्या करते थे? जैसे बेचने वाला मुल्क शाम से आया, अब वो खाने का सामान लाया अपने साथ बेचने के लिए, ये खरीदने जाते गरीब लोग, तो ये अमीर लोग क्या करते? कुफ्फारे मक्का उसकी डबल तिबल कीमत कर देते ताकि ये लोग खरीद ना पाए। सोचिए किस दर्जे की तकलीफ दी अल्लाह के नबी को, किस दर्जे की तकलीफ दी आपके खानदान वालों को। कीमतों को बढ़ा दिया करते थे ताकि ये कुछ खरीद ना पाए। सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने उस दौर के अंदर पत्ते खाकर गुजारा किया। क्या खाकर? सोचिए पत्ते को इंसान खा सकता है? पत्ते खाए। यहाँ तक कि सहाबा इकराम कहते हैं कि वो दौर ऐसा दौर था कि हम लोग जब लेटरिंग करने जाते तो जानवरों की तरह लेटरिंग हमारी निकलती थी, क्योंकि हम पत्तियां खाया करते थे। पत्तियां खाकर गुजारा किया। इसी दौर के अंदर साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाकया बताते हैं, ये भी सीरत इब्न हिशाम के अंदर है। वो वाकया बताते हैं साद इब्न अबी वक्कास कि मैं भी उसी गार के अंदर था, बायकाट की मुद्दत चल रही थी, परेशानी का इंतहाई ज्यादा आलम था। कुछ लोग थे जो चोरी छुप के रात में खाना लाकर दे दिया करते थे, भाई इनके रिश्तेदार थे पर दूर के थे या मक्का वाले थे, चुप चुप के इनको कुछ ना कुछ दे जाया करते थे। फिर भी इतना नहीं होता था कि सब खा सके, इंतहाई ज्यादा भुखमरी का आलम हो गया। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि भुखमरी का यह आलम हुआ कि एक मर्तबा में रात को पेशाब करने निकला तो मैंने किसी चीज को महसूस किया। मैंने देखा तो एक चमड़े का टुकड़ा था। वो कहते हैं कि मैंने उस चमड़े के टुकड़े को पानी में उबाला, भिगाया और पीस कर उसे खा लिया। तसव्वुर कीजिए भूख की क्या आलम रही होगी, प्यास की क्या आलम रही होगी, कि शिद्दत का आलम रहा होगा। और उस शिद्दत के आलम में भी ये सारे लोग बोलते थे अल्लाहद अल्लाहद, अल्लाह एक है। हम खाते पीते नेमतों में रहते, हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, रोजे नहीं रखे जाते, इबादतें नहीं की जाती। आज हम इस दीन को इतना आसान समझते हैं, ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है? इस दीन को पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी ने कितनी मुश्किलें उठाई हैं, सहाबा किराम ने कितनी मुश्किलें उठाई हैं, आपके खानदान ने कितनी मुश्किलें उठाई हैं। इसका तसव्वुर इस चीज से लगाइए कि इतनी ज्यादा तकलीफ के आलम के अंदर, यहां तक के बाद रिवायात के अंदर आता है कि रात में भूख के मारे जब ये चीखा करते थे इनके बच्चे, क्योंकि माओं के पास खिलाने के लिए कुछ ना था, बच्चों के लिए दूध ना था, इस तकलीफ के आलम में जब वो बच्चे रोया करते थे तो मक्का के अंदर कलेजे हिल जाया करते थे। इस शिद्दत से वो बच्चे रोते भूख के आलम में। ये अमल चलता रहा, ये परेशानी चलती रही। करीब करीब 3 साल पूरे होने वाले थे। उस दौर के अंदर एक आदमी थे जिनका नाम था हिशाम बिन अम्र। क्या नाम था? हिशाम बिन अम्र। उनसे ये देखा ना गया, उनसे रहा ना गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये जुल्म वाले मुआहदे को बाकी नहीं रहने दे सकता। ये कैसा जुल्म है? लोग भूखे मर रहे, प्यासे हैं, परेशान हैं, कैसे इस तकलीफ के अंदर हम उन्हें देखें? हिशाम इब्न अम्र इसके लिए कोशिशें करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तकरीबन 5 लोगों को अपने साथ जमा करते हैं। कितने लोगों को जमा करते हैं? एक का नाम था हिशाम बिन अम्र, दूसरे का नाम जुहैर बिन उमैया, जुहैर बिन उमैया, तीसरे का नाम था मुतअम बिन अदी, मुतअम बिन अदी। पहला नाम हिशाम इब्न अम्र, जुहैर बिन उमैया, मुतअम बिन अदी। एक का नाम था अबुल बख्तरी, अबुल बख्तरी, अली बा वाव अबू और अल बख्तरी, बा खा ता रा और या। लिख लिया आपने? वापस रिपीट करता हूं। जुहैर इब्न हिशाम बिन अम्र, जुहैर बिन उमैया, मुतअम बिन आदी, अबुल बख्तरी और आखिरी का नाम था ज़मआ, जा मीम ऐन गोल ता, ज़मआ, ज़मआ, ज़मआ। ये 5 लोग जमा होते हैं। हिशाम इब्न अम्र एक एक के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं देखो ये कैसा जुल्म है, हमारे खानदान वाले, कबीले वाले परेशान हैं, भूख और प्यास का शिद्दत का ये आलम है, चलो इनकी मदद करें। चलो उनके पास जाते हैं। ये सब मिलकर कुफ्फारे मक्का के पास जाते हैं, वहां जाकर बातचीत करते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि ये तुम्हारा अमल गलत है, तुम्हारा ये जुल्म गलत है, तुम्हें ये अमल नहीं करना चाहिए, तुम्हारा ये अमल गलत है, तो अगर तुम ये अमल करोगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब तुम पर आएगा। उन लोगों को छोड़ दो, उनका बायकाट खत्म कर दो, उनके लिए आसानियां कर दो। इधर ये बात करते हैं, उधर
अबू तालिब। कौन? अबू तालिब काबा के अंदर ही बैठे थे। वहीं पर जब ये बातचीत चल रही थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि अबू तालिब सुनिए, ये बायकाट का जो मुआहदा इन लोगों ने बनाया है ना, अल्लाह ताला ने उस पर एक चीज ये नाजिल की है कि कीड़ा नाजिल किया है जिसने पूरे मुआहदे को खा लिया है। उस पेपर को क्या किया है? जिस चीज पर इन्होंने मुआहदा लिखा उसको पूरा खा लिया है। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। क्या बाकी है? उस मुआहदे को जब लिखा था तो बिस्मिल्लाह से लिखा था उन्होंने। तो अबू तालिब को आपने ये बताया था कि मुआहदा जो उन लोगों ने बनाया है उसको कीड़े ने पूरा खा लिया है। सिर्फ क्या बाकी है उस पर? अल्लाह का नाम। अबू तालिब ने जब देखा कि 4-5 लोग कोशिशें कर रहे हैं तो ये कहते हैं सुनो मेरी बात, तुम मुआहदा जिस मुआहदे की तुम बात कर रहे हो, जिस बायकाट की तुम बात कर रहे हो, निकाल कर हमको दिखाओ कौन से बायकाट की तुम बात कर रहे हो। हम इसको नहीं मानेंगे। बायकाट तुमने कहाँ लिखा था बताओ। तो अबू जहल कहता हम बता देंगे, लिखा हुआ है हमारे पास। कहा जो तुमने लिखा था वो अब बाकी नहीं है। क्या है? अब बाकी नहीं है। तो अबू जहल कहता अगर आप ऐसा कह रहे हो कि बाकी नहीं है, अगर आपकी बात सच्ची निकली तो मुआहदा खत्म, और अगर झूठ निकली तो मोहम्मद को हमारे सुपुर्द कर देना। क्या कर देना? अल्लाह। तो अबू तालिब को चुके बता ही दिया था अल्लाह के नबी ने। तो ये कहते हैं हमें मंजूर। जब वो काबा को खोलकर वो मुआहदा निकालने जाते हैं तो चूंकि जानवर पूरा खा चुका था कीड़ा, वहां क्या बचा था? सिर्फ उसके अंदर अल्लाह का नाम। ये देखने के बाद वो मुआहदा तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और फिर इसके बाद इन लोगों को क्या कर दिया जाता है? आजाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आजाद कर दिया जाता है। तो अब इससे, इस पॉइंट से, इस पूरे मुकाते से, इस बायकाट से आपको पता चलता है कि ईमान वालों की हमेशा आजमाइश होती है। ईमान वालों की हमेशा आजमाइश होती है। उनके खिलाफ ये तक हो सकता है कि उन्हें घर से भी निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? घर से भी निकाला जा सकता है। और उसके बाद दूसरी चोट देखिए कि आपको हमेशा परेशान करने के लिए कारोबार पर हमला किया जाता है। किस चीज पर? कारोबार पर। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा ना, तौहीद पर आदमी आए, दुकान छीन लेते हैं, मकान छीन लेते हैं, कारोबार छीन लेते हैं। तो ये सब नया नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी हुआ। और तीसरी चीज ये याद रखिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है तो हमारी औकात और हैसियत क्या है? कितना अमल करते हैं हम, कितनी इबादतें करते हैं। वो रात दिन इबादत करने वाले, उनके साथ ये मामला, इतनी परेशानियां, तो उनके मुकाबले के अंदर हमारी औकात और हैसियत क्या है? इसलिए हमेशा अपने आप को हमें इन चीजों के लिए, इन तकलीफों के लिए क्या रखना चाहिए? तैयार रखना चाहिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हो गई? 50 साल। 50 साल की उम्र के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक और परेशानी आती है। जबकि उस परेशानी के पहले जब इन लोगों का मुआहदा खत्म होता है तो एक बार फिर ये लोग बात करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अब आप एक चीज पर गौर करने कि अबू तालिब का कितना वजन था कि अबू तालिब के सामने ये लोग कुछ कर पा रहे थे? अल्लाह के नबी को नहीं कर पा रहे थे। अबू तालिब यानी बहुत पावरफुल थे, बहुत ज्यादा उनका वजन था, बहुत ज्यादा उनकी कीमत थी, उस कौम के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो फिर एक बार ये लोग बात करने के लिए जाते हैं। इस बायकाट के बाद फिर एक बार जाते हैं कि अभी भी हमारी बात सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द कर दो। मना किया तो कहा अच्छा उनको एक बार बुलाओ, हम बात करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं। तो बात करने के लिए ये लोग उस टाइम वो जुमला बोलते हैं जो आपने सुना होगा कभी, मशहूर चीज। वो कहते हैं ऐसा करो कि साल भर हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, एक बार तुम हमारे माबूद की इबादत कर लेना। क्या कर लेना? यानी ना तुम हमें बुरा बोलो ना हम तुम्हें बुरा बोलेंगे। यानी तुम हमारे दिन को मान लो, हम तुम्हारे दिन को मान लेंगे। तब अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल की थी। बता सकते हैं कौन सी सूरत? माशाअल्लाह, सूरतुल काफिरून। कौन सी सूरत? कि काफिरों, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और हमारे लिए हमारा दिन। मतलब एक मोमिन अपने दीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। हल्दी का खाना बहुत अच्छा लगता है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। डीजे बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बेपर्दगी अच्छी लगती है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कि अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे दुनिया एक तरफ हो जाए, पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। एक मोमिन की यही जिंदगी होती है कि अल्लाह ताला को नाराज नहीं करता है। तो एक मोमिन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अब ये करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हो गई? 50 साल। कितनी उम्र? आपके 50 साल की उम्र, नबूवत का ये 10वां साल, इसे आमुल हुज्न कहा जाता है, गम का साल। क्या कहा जाता है? गम का साल। क्या कहा जाता है? गम का साल। क्यों कहा जाता है गम का साल? अगर आपसे कोई पूछे कि आमुल हुज्न क्यों कहा जाता है तो उसका जवाब आप लिखिए, आमुल हुज्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साल में 2 इंतकाल हुए थे। कितने इंतकाल हुए थे? एक अबू तालिब का और एक हजरत खदीजा का। अबू तालिब का और हजरत खदीजा का। यानी नबूवत का 10वां साल है और रजब का महीना है। इस महीने के अंदर किसका इंतकाल होता है? अबू तालिब का। किनका इंतकाल होता है? अबू तालिब का। अबू तालिब के इंतकाल का वाकया कभी आपने सुना है? आप हवाला लिख लीजिए, सही बुखारी जिल्द नंबर 1,
सफ़ा नंबर 548। किताबुल ईमान के अंदर ये रिवायत आपको मिलेगी कि अबू तालिब के जब इंतकाल का वक्त करीब आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और कहते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह, कि चाचा ऐसा करो, अब तो बिल्कुल मरने का टाइम आ गया। और अबू तालिब की उम्र उस वक्त कितनी हो गई थी? 80 साल। कितने साल? 80 साल। तो अबू तालिब के पास आकर कहते हैं कि कलमा है, तुम पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम्हारे लिए पूछूंगा। जब ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह करते, उस वक्त वहां पर अबू जहल भी मौजूद था। कौन मौजूद था? अबू जहल भी मौजूद था। तो अबू जहल जब देखता है कि जरा सा ये बार बार बोल रहे हैं कहीं कबूल ना कर लें, तो क्या हुआ था? अबू तालिब, क्या मरने के वक्त तुम अपने दिन से फिरने वाले हो? क्या करने वाले हो? मरने के टाइम दिन से फिरने वाले हो? कौन सा अमल कर रहे हो? ये कौन सा काम कर रहे हो? तो अबू तालिब को जरा सी गैरत आ जाती है, जो होती है ना हमारे अंदर बाप दादा वाली गैरत, जरा बाप दादा वाली गैरत आ जाती है। तो वो कहते कि नहीं नहीं, मैं अपने अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। किस पर हूँ? अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, यानी मैं भतीजे तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने उस पर दीन पर हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला कहते हैं, ला अस्तगफिरु लक रब्बी मा लम अनहा अन्हु, कि मैं अल्लाह ताला से आपके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा जब तक कि अल्लाह मुझे मना ना कर दे। तब अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को मना किया कि तुम अगर किसी का इंतकाल कुफ्र पर हो तो उसके लिए इस्तिगफार, आपको पता है अगर किसी का इंतकाल शिर्क और कुफ्र पर हो तो उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं की जा सकती। ये बात अल्लाह ताला ने कही है सूरह तौबा आयत नंबर 113 के अंदर। कहाँ कही है? सूरह तौबा आयत नंबर 113। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि किसी नबी के लिए, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कहीं यस्तगफिरु लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकों के लिए इस्तिगफार की दुआ करें, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो। तो हजरत अबू तालिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि दीन कबूल कर लो। उन्होंने कहा नहीं करूंगा, मैं तो अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर रहूंगा। तो कहा मैं तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुशरिक के लिए इस्तिगफार की दुआ नहीं कर सकते। फिर भी जब आप उनके लिए बार बार जरा बेचैन थे कि वो हिदायत पर आ जाएं, जरा कलमा पढ़ लें, तब अल्लाह ताला ने एक और हुक्म नाजिल किया था सूरह क़िसस आयत नंबर 56। सूरह क़िसस क़ाफ स्वाद क़ाफ, किस्से जिसके अंदर होते हैं। सूरह क़िसस आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने एक हुक्म नाजिल किया था कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देने का काम किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तो आपका काम क्या है? पहुंचाने का। आपका काम है पहुंचाने का। हिदायत देने न देने का काम किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इसलिए आप परेशान मत होइए, अल्लाह ने उनके लिए हिदायत नहीं लिखी है, इसलिए आप उनकी हिदायत के लिए परेशान मत होइए। आप उस पर अमल कीजिए जो आपको कहा गया है। तो आपने अपनी बात को पहुंचाया, अबू तालिब को समझाया, पर उन्होंने आपकी बात को नहीं माना। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी और मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर वो कई रिवायतें मौजूद है कि मेरे चाचा पर सबसे हल्का अजाब होगा, पर वो रहेंगे कहाँ? जहन्नम में। कहाँ रहेंगे? जहन्नम में। सारी जिंदगी अल्लाह की नबी की मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले, आखिरी उम्र तक आपका सपोर्ट करने वाले, पर तौहीद पर नहीं आए तो अल्लाह ने जन्नत, अपन सोचो अपने कितने सारे शिर्क करने वाले जो समझते हैं हम जन्नत में चले जाएंगे। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है इस बात से पता चलता है। दूसरा इंतकाल हुआ हजरत खदीजा का। किनका इंतकाल? उनका इंतकाल हुआ था रमजान के अंदर। कौन से महीने में? रमजान के महीने में। ये आपकी वो बीवी जो आपकी मददगार थी, साबिरा थी, हर वक्त आपके साथ रहने वाली थी, आपको हिम्मत दिलाने वाली थी। आपकी फजीलत के अंदर मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत आती है, मुस्नद अहमद जिल्द 6 सफ़ा 118, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 118। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खदीजा वो है आमनत बी हीना कफर बी अन्नास। खदीजा वो है कि वो मुझ पर तब ईमान लाई थी जब लोगों ने मेरा इनकार कर दिया था। उसने मुझे तब सच्चा माना था जब लोगों ने मुझे झूठा साबित कर दिया था कि ये झूठे हैं, मतलब झूठा बोलते थे। तब इन्होंने मुझे क्या कहा था? सच्चे हो। क्या हो? वो खदीजा वो है कि जिसने अपने माल से मेरी मदद की थी। क्या की थी? माल से। आप चाहें तो 4 खासियत लिख लीजिए हजरत खदीजा की, कि सबने जब आपको नहीं माना तब खदीजा ने आप पर ईमान कबूल किया। क्या किया? ईमान कबूल किया। सबने झूठा बोला, खदीजा ने आपको सच्चा बोला। आपकी माल से मदद की, यानी अगर वाइफ के पास माल हो तो वो शोहर की मदद कर सकती है। यहाँ तक कि अगर औरत के पास विरासत का माल हो और ज़कात निकाले तो अपने शोहर को दे सकती है नहीं? अगर शोहर गरीब हो तो वो शोहर को ज़कात का माल भी दे सकती है। यानी औरत अपने मर्द की मदद कर सकती है, पैसा दे सकती है, उसका माल, उसकी विरासत का माल। अगर उसके पास कोई हलाल कारोबार है पर्दे के साथ तो वो भी उससे मदद शोहर की
कर सकती है। तो हजरत खदीजा की 4 खासियतें जो अल्लाह के नबी ने बताई, पहली ये कि लोगों ने इनकार किया, खदीजा ने ईमान कबूल किया। लोगों ने झूठा कहा, खदीजा ने सच्चा कहा। अपने माल से मेरी मदद की। और चौथी चीज, अल्लाह ताला ने मेरी सारी औलादे जो हुई किससे दी? मुझे खदीजा से दी। सिर्फ मैंने आपको इससे पहले बताया था, एक बेटे किनसे हुए थे? मारिया किप्तिया से। पर सारे बच्चे अल्लाह ने किनसे दिए थे? ये इनकी खासियत है, ये इनकी फजीलत है। 4 तो ये हुई। 5वीं खासियत ये कि अल्लाह ताला उन पर सलाम भेजता था। क्या भेजता था? कितनी बड़ी बात है ना। हजरत जिब्रील एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर आए, सही बुखारी की रिवायत है, और आकर कहा कि इक़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, कि खदीजा को बोलो कि अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम बोला है। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी फजीलत है खदीजा की कि क्या कहा? अल्लाह ने सलाम कहा है, और उन्हें बशारत दो कि अल्लाह ताला ने जन्नत में उनका महल तैयार कर दिया है। अल्लाहु अकबर। क्या कर दिया है? महल तैयार कर दिया है। ये साबिरा बीवी थी, साथ दाने देने वाली बीवी थी, शोहर को ताकत देने वाली थी, शोहर को समझने और समझाने वाली थी, कमजोरी में सपोर्ट करने वाली थी। आज के दौर में लगता है आपको जरूरत है ऐसी औरत की? बताइए, कारोबार नहीं चल रहे हैं, लोग कर्जे में डूबे हैं, परेशानी का आलम है, इस वक्त जरूरत है ना कि ऐसी खातून की जो अपने शोहर को हिम्मत दिला सके? कुछ नहीं, अल्लाह करवा देगा, टेंशन मत लो, अल्लाह हल कर देगा। ये अमल था हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जिस अमल की आज हमारी खवातीन को जरूरत है। तो हजरत खदीजा की ये 5 सिफात लिख ली आपने। हाँ, जब लोगों ने इनकार किया, खदीजा ने ईमान कबूल किया। जब लोगों ने झूठा बोला, खदीजा ने सच्चा बोला। अपने माल से मदद की। अल्लाह ताला ने सारी औलाद उन्हीं से दी, और अल्लाह ताला ने उन पर सलाम और जन्नत की बशारत दी। एक साथ देख लें एक पॉइंट को। तो बहरहाल इस साल के अंदर 80 साल हजरत अबू तालिब की उम्र थी, हजरत खदीजा, इन दोनों का इंतकाल आमुल हुज़्न, यानी नबूवत का कौन सा साल है? ये 10वां साल। और आपकी उम्र का कौन सा साल है? 50वां साल। इस इंतकाल के नहीं, रमजान में इंतकाल हुआ था। तकरीबन इसके 1 या 2 महीने के बाद अल्लाह के नबी ने दूसरा निकाह किया था हजरत सौदा से। सौदा, क्या नाम था इनका? सौदा। हजरत सौदा, ये भी मुतल्लका थी, इनका पहले तलाक हो चुका था। उसके बाद इनका निकाह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ था। हजरत सौदा बिनते ज़मआ, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, सौदा बिनते ज़मआ। जो मैंने पहले नाम बताया था ना आपको, ज़मआ, उनकी बेटी थी। सौदा बिनते ज़मआ से शव्वाल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। क्या हुआ था? निकाह हुआ था। तो ये नहीं, आमुल हुज़्न की डिटेल मैंने आपके सामने मुख्तसर सी रखी। आखिरी में सिर्फ कुछ पॉइंट में इस ताल्लुक से रखता हूं कि आप एक पॉइंट यहां पर लिखिए कि सहाबा किराम में इतना सब्र कहां से आता था। आप देख रहे हैं सब्र कितना किया। मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मुआहिदा कर लिया, पैक कर दिया, खाना पानी बंद, निकाह बंद, ताल्लुकात बंद, फिर उन्हें क्या कर रहे थे सहाबा किराम? उसके बाद भी सब्र कर रहे थे। अल्लाह के दीन से हटे, दीन को छोड़ा, अल्लाह के नबी को छोड़ा। तो ये सब्र करने की वजह क्या थी? कैसे वो इतने साबिर थे? कैसे उनके अंदर इतना सब्र आता था? तो सहाबा किराम के सब्र करने की वजह क्या थी? सहाबा किराम के सब्र करने की वजह क्या थी? सबसे पहली वजह अल्लाह पर ईमान। उनका ईमान किस पर था? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर मजबूत ईमान था कि अगर हमारा रब हमारे साथ है तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। मतलब अगर ये हमें कुफ्फारे मक्का परेशान कर रहे हैं, हमें खाना पानी नहीं दे रहे, तो सब किसके हुक्म से हो रहा है? अरे अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता हिल सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो उनका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना ज्यादा मजबूत था कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारी मदद करने पर आ जाए तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है। आज उसी ईमान की हमें जरूरत है कि हम हर कदम पर, हर वक्त दीन के रास्ते में, दुनिया के रास्ते में ये ईमान रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। और जो ईमान रखता है कभी वो परेशान नहीं होता है। दूसरा, उनको सब्र करने की वजह थी अल्लाह के नबी की क़ियादत, अल्लाह के नबी का साथ, अल्लाह के नबी का साथ। आप देखिए इन सारी परेशानियों में अल्लाह के नबी ने उनका साथ छोड़ा था। वो भूखे तो ये भूखे, वो परेशान तो ये परेशान, उन पर तकलीफ तो इन पर तकलीफ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का साथ कभी भी, अपने साथियों का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। तो सहाबा किराम के सब्र करने की वजह थी कि जब ये सच्चे रसूल परेशान हैं तो हमारी हैसियत क्या है? तो इसलिए आपकी क़ियादत, आपका साथ उन्हें क्या दिलाता था? सब्र दिलाता था। क्या दिलाता था? सब्र दिला। पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? मैंने जो पॉइंट बेसिक जिक्र किया है कि सहाबा किराम में, देखिए बीच में ये बात लेकर आया हूं, मैंने आपको कहा स्टेप बाय स्टेप अपन इंशाल्लाह चलेंगे तो बातें क्लियर रहेंगी, समझ में आएंगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आखिरी अपनी बात के बाद एंड में ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं कि इतनी सारी परेशानियां, ये पूरा मक्का दौर परेशानी का जो गुजारा सहाबा किराम ने, तो उसकी वजह क्या थी? ये सब्र कहां से आता था? तो पहला पॉइंट, सब्र कहां से आता था?
अल्लाह पर ईमान, दूसरा पॉइंट नबी का साथ, तीसरा पॉइंट जिम्मेदारी का एहसास। जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर कहते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी मर्द से सवाल होगा बीवी बच्चों के बारे में, कारोबार के बारे में, इबादतों के बारे में। औरत से सवाल होगा शोहर बच्चों के बारे में, घर के बारे में, जो शोहर ने माल दिया उसके बारे में। यानी हर एक से अल्लाह ताला उसके बारे में सवाल करेगा, उसकी इबादत, उसके दीन, उसकी परेशानी, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, हर चीज के बारे में अल्लाह ताला क्या करेगा? बंदों से सवाल करेगा। तो सहाबा किराम साबिर इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि अल्लाह ने अगर दीन दिया है तो अल्लाह ताला का इनाम है, इसे पहुंचाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दीन की बात करना पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह का अजाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्लाह का अजाब। तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारी का? नहीं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं मस्त अपने घर के अंदर, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, ट्यूशन दे दी, थोड़ा बहुत सोच लिया, काम खत्म। हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं, इसलिए हमारे अंदर सब्र नहीं। सब्र है हमारे अंदर, जरा से में बेसब्रे बन जाते हैं, जरा से में उल्टे सीधे जुमले, तकदीर व इतराज, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अल्लाह अपने साथ ही अच्छा नहीं करता। इतनी नमाज पढ़ के क्या फायदा, इतने रोजे रख के क्या फायदा, अपने ही बच्चे बीमार रहते हैं, अपना ही कारोबार नहीं चलता है। इंसान जो ये सब चीजें बोलता है क्योंकि उसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। किस चीज का? जिम्मेदारी का एहसास नहीं। तो सहाबा किराम साबिर इसलिए थे क्योंकि उनको जिम्मेदारी का एहसास था। चौथा पॉइंट, आखिरत पर ईमान। आखिरत पर, इसको चाहे तो आप तफसील के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 214, सूरह बकरा आयत नंबर 214 के अंदर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, कि तुम समझते हो कि जन्नत में आसानी से चले जाओगे। अल्लाह ताला ने जन्नत तुमसे पहले उन लोगों को दी जिनकी जान पर तकलीफ आई, माल पर तकलीफ आई, बीमार हुए, परेशान हुए, मारे गए, काटे गए, जिंदा आग में जलाए गए, लोहे के कंगों से उनकी चमड़ियों को नोच लिया गया, उनके हाथ पैर काट लिए गए। अल्लाह ताला कहता है उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए क्या फैसला किया? जन्नत का। यानी जन्नत आसानी का नाम नहीं है। तो अगर आखिरत पर ईमान हो तो अंदर में क्या आ जाता है? सब्र आ जाता है। यानी अगर मुझे यकीन हो कि जन्नत मिलेगी, जन्नत में वो नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होंगी, जन्नत की नेमतें फानी नहीं है, जन्नत में एक बार चले गया तो निकाला नहीं जाऊंगा, अगर मुझे एहसास होगा तो दुनिया की तकलीफ से मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कि भाई दुनिया की तकलीफ 4 दिन की, हमेशगी की जन्नत के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो अगर आखिरत पर ईमान हो तो बंदा कैसा हो जाता है? साबिर हो जाता है। कैसा हो जाता है? साबिर हो जाता है। और आखिरी पॉइंट लिखिएगा 5वां, बशारतें, खुशखबरियां। खुशखबरियां, खुशखबरियां यानी उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई खुशखबरियों पर यकीन था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है, अल्लाह ने नेमतों का वादा किया है। अल्लाह ने कहा वो जन्नत दूंगा जिसकी नेमतें खत्म ना होंगी, वो जन्नत दूंगा जिसके अंदर ऑन डिमांड हर चीज दी जाएगी, वो जन्नत दूंगा जिसके अंदर सोचने पर चीजें दी जाएंगी, वो जन्नत दूंगा जिसकी नेमतें खत्म ना होंगी। इन बशारतों पर उन्हें यकीन था, इन खुशखबरियों पर उन्हें यकीन था। तो अगर इस पॉइंट को हम भी अपनाएं तो सब्र आ सकता है इंशाअल्लाह। सहाबा किराम साबिर क्यों थे? हाँ, नबी का साथ, हाँ, आखिरत पर ईमान और बशारतें। तो आज मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से अगर जिक्र करूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए साहबे कुफ्फार मक्का ने जो उसलूब इख्तियार किया था, सबसे पहला आपका मजाक उड़ाना, हिकारत करना और आपको झूठा साबित करना। क्या करना? झूठा साबित करना। दूसरा आपके खिलाफ क्या करना? बातें करना, आपके खिलाफ बातें करना। तीसरी चीज कुरान सुनने से लोगों को रोकना। चौथी चीज हाँ, उन्हें अजाब देना। क्या देना? अजाब देना। 5वां पॉइंट अबू तालिब से बातचीत। 6ठा पॉइंट खुद अल्लाह के नबी के ऊपर एतदा करना, सख्तियां करना। 7वां पॉइंट मोजज़ात की डिमांड करना। उसी दरमियान मैंने बताया था कि आपने उस वक्त में 2 काम किए थे 44 साल की उम्र में। क्या किया था? दारुल अरकम बनाया था और क्या किया था उसके बाद? हिजरत हबशा की थी, हबशा की तरफ हिजरत की थी। फिर उसके बाद दूसरी हिजरत का भी मैंने जिक्र किया, पहली हिजरत का जिक्र किया। हिजरत में कितने लोग थे? जुबैर इब्न अल-अव्वाम पे दूसरे बार में सरदार थे, पहली बार में कौन थे? अमीर किनको बनाया था पहली बार में? उस्मान गनी को। किनको बनाया था? उस्मान गनी को। इसी दरमियान में अल्लाह के नबी की 44-45 साल की उम्र में 2 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। किस किस ने? हजरत हमजा और हजरत
عمر نے. 8واں پوائنٹ میں نے کیا بتایا تھا؟ لالچ دیا. ماشاءاللہ. 9واں پوائنٹ آج جو بتایا الٹے سیدھے سوال کیے. 10واں پوائنٹ قتل کا ارادہ کیا. 11واں پوائنٹ یہودیوں سے ملاقات کی, وہاں سے سوالات لے کر آئے. سورہ کہف کو پڑھیے گا انشاءاللہ, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک دم مطلب انٹرسٹنگ ہے. اگر پڑھو گے نا آپ تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس کو اگر ہو سکے تو آسن البیان کے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ, بہت اچھا لگے گا آپ کو پڑھنے کے اندر. 12واں پوائنٹ میں نے بتایا کیا کیا ان لوگوں نے, سماجی بائیکاٹ. بائیکاٹ کے اندر آپ کو پریشان کیا, کھانا پانی روک دیا. میں نے بتائی معاہدے کی شرطیں کیا تھیں, نکاح نہیں کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے, کاروبار نہیں کریں گے, ملنا جلنا بند. اور اس کے بعد 5واں پوائنٹ, جب تک کہ آپ اسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں. اس کے اندر کون کون سے قبیلے تھے؟ 2 بنو بائیکاٹ کے اندر, بنو ہاشم, بنو عبد المطلب. اور اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ مختصر سا ذکر کیا صحابہ کرام کی پریشانیوں کا. پھر اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کس نے کی سب سے پہلے؟ ہشام بن عمرو, اور ان کے ساتھ 4 لوگ اور تھے, زہیر بن امیہ, مطعم بن عدی, ابو البختری اور زمعہ بن اسود. پورا نام لکھ لیجئے ان کے پاپا کا, زمعہ بن اسود. اسود, الف سین واو دال, اسود. پھر اس کے بعد میں نے بتایا یہ لوگ کعبہ کے قریب آئے. کہا بھائی کون سا معاہدے کی تم بات کر رہے ہو, دکھاؤ. تو ابو طالب نے بولا دکھاؤ, اگر معاہدہ باقی ہوگا تو اس کو باقی رکھیں گے, نہیں ہوگا تو سب ختم کام. تو اس کے بعد جب معاہدہ نکالا تو اس میں کیا بچا تھا؟ صرف اللہ کا نام, باقی سب ختم ہو گیا تھا, کیڑے نے اس کو کھا لیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو 13واں پوائنٹ بتایا, 13واں پوائنٹ نہیں, اسی بائیکاٹ کے اندر بتایا تھا, ابو طالب سے دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے گئے. پھر جب آپ کی 50 سال کی عمر ہوئی تو وہ سال کون سا ہے؟ عام الحزن کہا گیا, کیونکہ اس میں کس کس کا انتقال ہوا تھا؟ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا. ابو طالب نے انتقال کے وقت اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں آپ کے لیے استغفار کی دعا کہوں گا, تو اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ کہاں پر منع کرا تھا؟ 13 کے اندر. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ کی کچھ خاصیت بتا سکتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ, 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 بہت اچھے. اور جنت میں گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا, ماشاءاللہ. اور اس کے بعد نکاح آپ کا کس سے ہوا تھا؟ سودا بنت زمعہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں اتنا صبر کہاں سے آتا تھا؟ اللہ پر ایمان, ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جو وقت آپ یہاں پر لگاتے ہیں اس وقت کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن کے اندر برکت دے دے انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سیکھ کر جان کر آپ خود دائی بنیں, آپ ان چیزوں کو پھیلانے والے بنیں. اور اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آگے چل کر ایک پروگرام اس طرح سے بھی اپن سیٹ کریں گے کہ جیسے کنٹینیو درس چلتے چلتے بیچ میں روک کر ایک آدھ بار تقریر کا بھی پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ, کہ آپ اس کے اندر کسی بھی پوائنٹ کے اوپر 2 منٹ 3 منٹ کی ایک انشاءاللہ بیان کریں, تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ کے اندر کیا ایبلٹی, کیا صلاحیت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کے